انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگراں وزیر اعظم بن کر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگراں وزیر اعظم تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت تعینات کی منظوری دی۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں آج نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت کا دوسرا دور ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف لاہور روانہ ہو گئے۔ انوار الحق کاکڑ کون ہیں؟ سینیٹر انوار الحق کاکڑ ملک کے 8ویں نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ 1971 میں بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں پیدا ہوئے۔ انوار الحق کاکڑ نے ابتدائی تعلیم سینٹ فرانسس ہائی اسکول کوئٹہ سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے کریڈٹ کالج کوہاٹ میں داخلہ لیا۔ انوار الحق کاکڑ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے 2008 میں کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے بعد شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا اور اپنا ذاتی سامان لے گئے۔ شہباز شریف نے جانے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے الوداعی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو کل وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا اور ان کی رہائش گاہ پر پروٹوکول دستے پہنچ گئے۔ سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا عدم ہونے کا میاں نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف کی نااہلی 5 سال پورے ہونے پر ختم ہو چکی ہے۔ مانتا ہوں کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے ہمارے ووٹ بینک میں کمی ہوئی، مگر ہم نے ریاست کو بچایا۔ نواز شریف کے واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے بعد بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی۔ گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 4 ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سابق رکن قومی اسمبلی عثمان بادینی اور BNP کی جانب سے رکن وائس حمل قلمکی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حسن ظہری کے نام دیے گئے ہیں، جبکہ سابق بیوروکریٹ شبیر مینگل کا نام بھی زیر غور ہے۔ السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔
समरी पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान वजीर आजम हाउस में आज निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत का दूसरा दौर हुआ। वजीर आजम से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाए जाने की तस्दीक कर दी। राजा रियाज का कहना था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाने पर इत्तफाक हो गया है और वजीर आजम ने इस फैसले पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तर्जुमान ऐवान सदर का कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम के लिए भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम की सिक्योरिटी दे दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कायदे हस्ब इख्तलाफ का मुशावरती अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया है और वजीर आजम ने 16 माह में बतौर बेहतरीन हस्ब इख्तलाफ की क़यादत पर भी शुक्रिया अदा किया। ज़राए का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम की सिक्योरिटी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ कौन है? सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे। उनका ताल्लुक कोयटा से है और वो 1971 में बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हुए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में दाखिला लिया, लेकिन वालिद के इंतकाल पर वापस कोयटा आ गए। अनवारुल हक काकड़ आला तालीम के लिए लंदन गए, जबकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। अनवारुल हक काकड़ ने करियर का आगाज अपने आबाई स्कूल में पढ़ाने से किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें कामयाबी न मिल सकी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया और अपना साथी सामान ले गए। शहबाज शरीफ ने जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को कल वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया और उनकी रहायशगाह पर प्रोटोकॉल दस्ते पहुंच गए। ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए मेहमानों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। सबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारों और इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा को दावतनामे भिजवाए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस को दावतनामे अरसाल कर दिए गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। चारों सूबाई गवर्नर्स और निगरान वज़रा आला को भी तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ किया जा रहा है। 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इत्तेहादियों ने मुझे इख्तियार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्री के हवाले से अभी आईनी तौर पर चंद रोज मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का लदम होने का मियां नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल पूरे होने पर खत्म हो चुकी है। मानता हूँ कि मौजूदा सूरत-ए-हाल की वजह से हमारे वोट बैंक में कमी हुई, मगर हमने रियासत को बचाया है। नवाज शरीफ के वापस आने में कोई रुकावट नहीं रही। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, चीन से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार किए, मगर पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ के मैंडेट को चुरा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, हमने चैलेंजेस से निपटा था। IMF की वजह से महंगाई आई, हमने महंगाई कम करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की और कुछ कम हुई है। मैंने कभी किसी सहाफी से कोई गिला नहीं किया। मैंने तनकीद और तामीर को हमेशा खुश आमदीद कहा है। मैंने सहाफियों पर यकीन किया कि वो एक आजाद रिपोर्ट देते हैं। हमें सख्त फैसले और एक्शन लेने पड़े क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कोई वज़ीर आज़म ऐसे अलविदा नहीं हुआ जैसे मैं जा रहा हूँ। मैं सबसे मिलकर जा रहा हूँ।
بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے بعد بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی۔ گورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکڑ نے اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علی حسن زہری کے نام بھی دیے گئے ہیں، جبکہ سابق بیوروکریٹ شبیر مینگل کا نام بھی زیر غور ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا نام فائنل ہونے کے بعد 14 رکنی صوبائی نگران کابینہ تشکیل دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ خبر شامل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات اور اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی وجوہات سے متعلق رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے۔ عدالت نے اس بات پر معاونت طلب کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ قیدی کو ہفتے میں 1 سے زائد بار ملاقات سے روکے۔ جیل رولز کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے دوست، رشتہ دار اور وکلاء سے ملاقات کروائیں، انہیں جائے نماز اور انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید دیا جائے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مناسب طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے قانونی امور کے ترجمان نعیم پنجوتا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو محفوظ کھانا مہیا کرنے پر تاحال فیصلہ نہ ہوا، ان کو اڈیالہ جیل میں بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ اس وقت جاری کیا جب ملاقات کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ نعیم پنجوتا نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بنیادی انسانی حقوق چھیننے جا رہے ہیں۔ ہم نے تمام گزارشات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی ہیں۔ عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے ججز کے خالی اسامیوں پر بھرتیاں جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس میں 5ویں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن نے شرکت کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ آئین اور بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ عدلیہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ ججز عدالتی عملے اور وکلاء کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ غیر سنجیدہ درخواست بازی کے حوصلہ شکنی کی جائے۔ تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کا نظام بہترین ذریعہ ہے۔ ثالثی کے نظام سے عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ اجلاس میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے سالوں سے زیر التوا مقدمات کے فیصلوں کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ہمیں نہیں تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کمیٹی کے ساتھ مل کر 5 نام دیے تھے۔ کمیٹی نے سلیم عباسی، جلیل عباسی، محمد مالک، افضل خان کے نام دیے تھے۔ جہاں سے بھی نام آیا ہے ہمیں امید ہے اچھے کی رکھنی چاہیے۔ انتخابات میں تاخیر کے خدشات تو پہلے دن سے ہیں۔ جب نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کا بل منظور ہوا، انوار الحق کاکڑ کا نام سینٹ سے لیا گیا ہے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں تھی، بہتر ہوتا کہ ہم کسی اور شخص کا انتخاب کرتے۔ انوار الحق کاکڑ اگر صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنانے میں کامیاب ہوئے تو انہیں یاد رکھا جائے گا۔ جینا ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خدیجہ شاہ، صنم جاوید سمیت دیگر خواتین کی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے جینا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت کی۔ اس دوران خدیجہ شاہ، صنم جاوید سمیت دیگر خواتین ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے خواتین ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کرتے ہوئے صدا کی کہ مقدمے کے چلان تیاری کے مرحلے میں ہے، کچھ مہلت دی جائے۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزمان کو 26 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان کے لیے روسی خام تیل امپورٹ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ ریفائنریز ذرائع کے مطابق پاکستان ریفائنری نے پورا روسی تیل پروسیس کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈسٹری ذرائع نے بتایا کہ عرب ممالک کے خام تیل کے مقابلے میں روسی تیل سے تقریباً 20% زائد فرنس آئل بن رہا ہے۔
इंडस्ट्री सराय के मुताबिक फर्नेस ऑयल कम कीमत में एक्सपोर्ट के बाद रूसी खाम तेल का फायदा महदूद है। सराय का कहना है कि 11 और 26 जून को 2 जहाजों के जरिए इंपोर्ट के बाद कोई रूसी तेल जहाज पाकिस्तान नहीं आया। आपको बताते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान के लिए रूसी खाम तेल इंपोर्ट आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। रिफाइनरी सराय के मुताबिक पाकिस्तान रिफाइनरी ने पूरा रूसी तेल प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्री सराय ने बताया कि अरब ममालिक के खाम तेल के मुकाबले में रूसी तेल से तकरीबन 20% जायद फर्नेस ऑयल बन रहा है। इंडस्ट्री सराय के मुताबिक फर्नेस ऑयल कम कीमत में एक्सपोर्ट के बाद रूसी खाम तेल का फायदा महदूद है। पंजाब हुकूमत ने मरी के मुतबादिल नए हिल स्टेशन कायम करने का असूली फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में खसूसी इजलास हुआ। इजलास में मरी के मास्टर प्लान सहूलतों की बेहतरी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले किए गए। मरी के मुतबादिल नए हिल स्टेशन कायम करने का भी असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुतबादिल हिल स्टेशन के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया है और नए हिल स्टेशन के क्याम से मुतालिक सिफारिशात 10 दिन के अंदर तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने मरी में रोड के तरफ तजावुजात और इमारतों की गैर कानूनी तामीरात पर शदीद इजहार तशवीश किया है। मरी में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई और जेर तकमील गैर कानूनी इमारतों की तामीरात रोकने का भी हुक्म दिया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरी के कश्मीर पॉइंट पर यौम आज़ादी की शब आतिशबाजी की जाएगी। यौम आज़ादी पर मरी में आने वाले सियाहों की सहूलत के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक की रवानी के लिए अंदरूनी और बैरूनी सड़कों की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल की जाए। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मिलकर एक्सप्रेस वे क्लियर कराने की भी हिदायत कर दी गई है। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नजर CTD ने ताज़ा कार्रवाई की है, जिसमें कालेधन तंजीमों के 21 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम का कहना था कि गिरफ्तार दहशत गर्दों में कालेधन TTP के 9 और दाइश के 4 अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। दहशत गर्दों को नारोवाल, डीजी खान, रावलपिंडी, जेहलम, मुजफ्फरगढ़, गुजरांवाला, सरगोदा, लिया, अटक और साहिवाल से गिरफ्तार किया गया है। CTD हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों से बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और नकदी बरामद हुई है। दहशतगर्द खतरनाक मंसूबा तैयार कर रहे थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल जारी है। हुकाम ने रवां हफ्ते 700 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 49 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 29,000 से ज्यादा अफराद से पूछताछ का अमल शुरू किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान निगरान वज़ीर आला के लिए नए नाम न तय हो सके। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए फिलहाल कोई नाम से रिकॉर्ड नहीं लाया गया। मुलाकात में साबिक वज़ीर नासिर शाह भी मौजूद थे, जबकि उस दौरान दोनों की जानिब से तय किया गया कि क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि जब तक निगरान वज़ीर आला ना आ जाए तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हुआ। इनके मुताबिक 3 दिन में मुझे और अपोजिशन लीडर को सलाह मशवरा करना है। हम अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और मुत्तफिक होते हैं तो निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत जल्द होगी। नून लीग के रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की तमाम ज्यादतियों का अजाला होगा। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली के सिलसिले में कानून साजी को रुजू करने की जरूरत है, जिसमें नाअहली 5 साल तक महदूद कर दी गई है। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत जल्द होगी। नून लीग के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि माजी की तमाम ज्यादतियों का असाला होगा। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। साबिक वज़ीर आज़म सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली के सिलसिले में कानून साजी को रुजू करने की जरूरत है।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 75 के तहत मजीद 5 बिलों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने गैस चोरी की रोकथाम और रिकवरी तरमीमी बिल, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन तब्दीली तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। ट्रेड मार्क्स तरमीमी बिल 2023 और तिजारती तनाज़ात के हल का बिल 2023 भी मंजूर कर लिए गए। अलावा से सदर मुमलिकत ने अब्दुल रज़ाक दाऊद की मजीद 5 साल के लिए बतौर लम्स यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर की मंजूरी भी दे दी है। सदर मुमलिकत ने दोबारा तैनाती की मंजूरी लम्स चार्टर 1985 के सेक्शन 10 के तहत दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी के केस में OEBI इंतजामिया को गार्ड से माफी मांगने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार हुसैन 2008 में सर्विस के दौरान हादसे में मासूर हो गए थे। उन्होंने पेंशन के लिए EOBI से रजू किया, लेकिन EOBI ने पेंशन ग्रांट की अदायगी से इनकार कर दिया। EOBI की जानिब से मौकिफ अपनाया गया कि इफ्तिखार हुसैन की मुद्दत मुलाजमत 15 साल से कम है, सिर्फ ओल्ड एज ग्रांट के हकदार है। इस पर रिटायर्ड सिक्योरिटी गार्ड ने वफाकी मुहतसिब से रब्ता किया। वफाकी मुहतसिब ने EOBI को केस पर गौर करने की हिदायत की, लेकिन मुहतसिब के फैसले के खिलाफ EOBI ने सदर मुमलिकत को अपील दायर की, जिस पर सदर मुमलिकत ने फैसला सुनाया। सदर मुमलिकत ने अपने फैसले में कहा कि मैं पाकिस्तान के सदर की हैसियत से शहरी से माफी मांगता हूँ। पेंशन के लिए सिक्योरिटी गार्ड को दफ्तर के इहाते में दाखिले की इजाजत तक नहीं दी गई। आम मजदूर को पेंशन के लिए बरसों इंतजार करना शर्मनाक बात है। सिंध हाई कोर्ट ने जिला मलीर में नेशनल पार्क को खत्म करके हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ दरखास्त पर चीफ सिक्योरिटी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौकिफ दिया कि नेशनल पार्क की जमीन एक बड़े बिल्डर के हवाले की जा रही है। उन्होंने नेशनल पार्क की जमीन पर ग्रीन हाउसिंग स्कीम बनानी है। नेशनल पार्क खत्म होने से नायाब जानवर भी खत्म होने का खदशा है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि 9 मई वाकयात की सजा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी एहतजाज सियासी मकामात पर तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। साबिक वज़ीर आला परवेज खजक के दावों पर अली मोहम्मद खान का कहना था कि ख्वाब जागते हुए नहीं, रातों को देखने चाहिए। FIA के डिप्टी डायरेक्टर अली मुराद का 2 दिन में 2 बार तबादला हुआ। अली मुराद को डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल से तबादले के बाद डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम ने तलब कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम अयाज महर को तबादले के बाद डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल मुकर्रर किया गया। अयाज महर का पहले भी डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल से तबादला किया गया था, ताहम अब वापस भेज दिया गया है। अली मुराद को गुज़िश्ता रोज डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट से तबादले के बाद डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल तैनात किया गया था। उनके बतौर डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल चार्ज लेने के कुछ घंटे बाद दोबारा तबादला किया गया। रिकॉर्डिक मंसूबे में सऊदी अरब को शामिल करने का फैसला है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने रिकॉर्डिक मंसूबे में सऊदी शमूलियत के पेश नजर गोल्ड कंपनी के शेयर यकसा तौर पर कम करने के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी। रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट में दूसरे मुल्क को शामिल करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला रवां हफ्ते सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी ने किया था। सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी ने यह भी फैसला किया कि सऊदी अरब को मंसूबे का शराकत दार बनाने के लिए वजारत तवानाई एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। इस तरह वजारत तवानाई इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले 3 सरकारी इदारे रिकॉर्डिक मंसूबे से अपने हिस्स की तकसीम शुरू कर देंगे। वजारत तवानाई हुकाम के मुताबिक सरमायाकारी काउंसिल ने बोली की दस्तावेजात पर दस्तखत समेत लेन देन के दीगर मामलात को मुकम्मल करने के लिए 25 दिसंबर 2023 की डेडलाइन दी है।
स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की रीफ्यूलिंग की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा ने कहा कि स्कर्दू को ओपन स्काई डिक्लेयर कर दिया है, दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ फ्लाइट्स आ सकती हैं। खाकान मुर्तजा ने बताया कि 14 अगस्त को दुबई से PIA की पहली परवाज स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कोशिश है दीगर एयरलाइंस भी स्कर्दू एयरपोर्ट पर ऑपरेशन का आगाज करें। स्कर्दू एयरपोर्ट एविएशन में गेम चेंजर साबित होगा। खबर शामिल करें आर्मी मंजरनामे से तो शुमाली नाइजीरिया की रियासत कदोना में मस्जिद की छत गिरने से 10 नमाजी जहां बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नमाज के दौरान एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और मस्जिद की छत नमाजियों के सरों पर गिर गई और मस्जिद के अंदर धूल ही धूल भर गई। मस्जिद 150 साल से ज्यादा अरसे कबल बनाई गई थी और जब छत गिरी तो इसमें बहुत से नमाजी मौजूद थे। जारिया सिटी काउंसिल के तर्जुमान अब्दुल्ला बितामी ने कहा कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सैकड़ों नमाजी शहर की मरकजी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। अमेरिका की रियासत हवाई में आग से अमवात की तादाद 67 हो गई। ये रियासत हवाई का बदतरीन कुदरती सानिया है। गवर्नर के मुताबिक जले हुए घरों में अब भी कई अफराद की लाशें मौजूद हो सकती हैं। तेजी से फैलने वाली आग से हलाकतों में इजाफा हुआ है। जराये के मुताबिक आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। तूफानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जंगलात में लगी आग से तारीखी सियाहती मकाम लेहाना भी जलकर तबाह हो गया है। अमदादी कारकुनान सबसे ज्यादा मुतासर जजीरे मावाई से लोगों को निकालने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब अमेरिकी सदर बाइडन ने भी हवाई के जंगलात में आग को बड़ा सानहा करार दे दिया है। अमेरिका का कहना है कि कैदियों के मुआहदे के बावजूद ईरान पर पाबंदियों में कोई कमी नहीं की जाएगी। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बयान में कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियों पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रहेगा। 5 अमेरिकी कैदियों की रिहाई के मुआहदे के बाद भी ईरान को पाबंदियों के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में कैद अमेरिकियों की रिहाई के बदले बाइडन इंतजामिया ने ईरान से मुआहदा किया है जिसमें मुबैना तौर पर $10 अरब की रकम भी हासिल की जाएगी। ईरान ने 4 अमेरिकी मर्दों और एक खातून को जेल से रिहा करके घर में नजरेबंद कर दिया है। तो की जा रही है कि जल्द इन अमरीकियों को उनके वतन भेज दिया जाएगा। मिस्र में सिकंदर आजम का 22 साल पुराना मुजस्मा दरियाफ्त कर लिया गया। कदीम नवारदात की वजारत ने सिकंदरिया में कदीम रिहायशी और तजारती आसार कदीमा से सिकंदर आजम का मुजस्मा दरियाफ्त किया जिसके बारे में उनका ख्याल है कि यह कदीम मिस्र के आखिरी शाही दौर 2200 से ताल्लुक रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन की टीम ने सिकंदर आजम के मुजस्मे समेत मुजस्मे के सांचों और जंगजुओं के लिए तावीज बनाने का सामान भी दरियाफ्त किया गया है। वजारत के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफा वजीरी का कहना था कि सिकंदरिया के मज़कूरा बाला इलाके अल-शतबी में बारिश, सैलाब और जमीनी पानी को जखीरा करने के लिए गुलाबी रंग में पेंट किए गए सुरंगनुमा टैंकों का बड़ा नेटवर्क भी मौजूद है। उन्होंने कस्बे की तरतीब की मजीद वजाहत करते हुए बताया कि ये मरकजी सड़क और कई शाखों की सड़कों पर मुश्तमिल था जो सब जमानती सफाई के नेटवर्क से मुंसलिक है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मिस्र में सिकंदर आजम का 2200 साल पुराना मुजस्मा जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया। मुजस्मा कदीमी मिस्र के आखिरी शाही और 2200 से ताल्लुक रखता है और ये हुकाम का इस तरह से कहना है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आपको खबर दें कि पंजाब को करप्ट अनासर से पाक करने का मिशन है। एंटी करप्शन के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। 4 करप्ट अनासर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं साकिब भट्ट से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी साकिब, बताइएगा किन किन शहरों से गिरफ्तार किया गया है इन करप्ट अनासर को? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की पंजाब भर में करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एंटी करप्शन ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करके 4 मुलजमान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने तहसीलदार डेरा गाजी खान के रीडर मोहम्मद तस्नीम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रीडर मोहम्मद तस्नीम ने शहरी अमानुल्लाह से सरकारी रिकॉर्ड में दुरुस्तगी के लिए 35,000 रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन ने मुलजम मोहम्मद तस्नीम को मौका पर गिरफ्तार करके निशानजदा नोट बरामद कर लिए। महकमा हाईवे नारोवाल के हेड क्लर्क इमानत अली को शहरी से 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सियालकोट सिविल अस्पताल के डिस्पेंसर मोहम्मद रियाज और वार्ड बॉय अमीर हमजा को भी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजमान ने शहरी अबू बकर को मुलाजमत का झांसा देकर रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन ने रिश्वत में ली गई 25,000 की रकम मौका पर बरामद कर ली। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, ये तमाम मुलजमान को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और तर्जमान एंटी करप्शन का कहना था कि करप्शन फ्री पंजाब के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दरबार हजरत बाबा भोले शाह रहमतुल्लाह की मास्टर प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने तामीर और तस्सीर के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का दौरा कसूर है। कहा कि PC1 के साथ सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में फंड्स फ्राहम कर दिए जाएंगे। मंसूबे में पार्किंग, सेमिनार्स हॉल, लाइब्रेरी, समा एरिया, MNFT थिएटर, एयरटेल ब्लॉक शामिल है। मजार शरीफ की अपग्रेडेशन और तज़य्युन और आराइश का खसूसी डिजाइन भी तैयार किया गया है। नैयर अलीदादा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट महकमा CNW मंसूबे पर अमल दरामद औकाफ स्पॉन्सरिंग एजेंसी के तौर पर फराइज सर अंजाम देगा। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन इशफाक दयाल, मेशर औकाफ राना एहसान, STO लाहौर जोन राना सुहेब भी मौजूद थे। महकमा पुलिस को सियासी असर रसूख से पाक थाना कल्चर तब्दील करने की जरूरत है। रिश्वत के खात्मे के लिए IG पंजाब के सिर बुलंदो बांग दावे इस्लामपुर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अंधेर नकली मचा दी है। मुलजिम से रिश्वत लेने का अनोखा तरीका है। वहशियाना तशद्दुद, हालत खराब होने पर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर वसीम भट्ट रिश्वत की रकम न मिलने पर सीखपा हो गए हैं। शहरी सुहेल को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। अहले खाना के मुताबिक अदालत से जमानत होने के बावजूद हथकड़ी नहीं खोली गई। सब इंस्पेक्टर रिहाई के बदले 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? देखिए, ये इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर नौजवान को पहले चोरी के शुबा में गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर वसीम भट्ट था वो नशे की हालत में उस पर तशद्दुद करता रहा। जब वो शहरी की हालत बिगड़ी और उसे जो है वो दिल की तकलीफ शुरू हो गई तो फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जो है उसकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन वहाँ जो पुलिस थी इसको छोड़ के वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। जब मेरी बात हुई थी DIG इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन से तो उनका कहना था कि इसके साथ जो है वो कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वसीम भट्ट जो है ना पहले तो उसको तशद्दुद रोकने के भी पैसे मांगता था और बाकायदा तौर पर जो बेल करवाई गई कोर्ट से उस ऑर्डर को देखने के बावजूद भी जो है वो उसकी हथकड़ी नहीं खोली और उसके साथ जो है वो पैसों की डीलिंग करता रहा। जो कि शहरी ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो वहां पर अस्पताल में उसको छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो जिस तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो उस फैमिली के साथ उसकी बाकायदा तीमारदारी भी की और उसको हौसला भी दिया और कहा कि वसीम भट्ट सब इंस्पेक्टर को जो है वो इस केस से हटा दिया जाएगा और बाकायदा इसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी शहरी की अगर हालत की बात की जाए तो डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो पहले से बेहतर बताया जाता। मलक
سہیل ان کا نام ہے، جو کہ مقامی اسپتال میں وہاں پر داخل ہے، اور پہلے سے ڈاکٹروں کے مطابق اس کی صحت ٹھیک بتائی جاتی ہے، لیکن وسیم بٹ نے جو ہے وہ اس کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، جس طرح سے سینئر پولیس افسران کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ 3rd ڈگری کا استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نشے کی حالت میں، جس طرح سے لاہور پولیس میں بھی بہت ایسے اہلکار ہیں، ایسے تھانے دار ہیں جو کہ نشہ کی حالت میں جو ہے وہ تھانہ میں آ جاتے ہیں اور شہریوں پر تشدد کرتے ہیں. تو اسی طرح کا واقعہ آج اسلام پورہ انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ سینٹر میں ہوا کہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ وسیم بٹ سب انسپیکٹر نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی حالت غیر ہونے پر اس کو اسپتال پہنچایا اور وہاں سے بھی رفو چکر ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے تمام آپریشن تھیٹرز کو مکمل فعال کر دیا گیا. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ اب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کے محفوظ علاج کو یقینی بنایا جائے گا. آپریشن تھیٹرز کو انفیکشن آڈٹ کلیئرنس کے لیے کاوش کرنے پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر فرقت عالمگیر ایم ایس ڈاکٹر تحسین کو مبارکباد دیتا ہوں. پی آئی سی کے 9 میں سے 7 آپریشن تھیٹرز کو انفیکشن آڈٹ کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تھا. پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے محفوظ علاج کو ہر صورت یقینی بنائیں گے. پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ پنجاب کے نائب صدر کے بیٹے کی سینٹ اینتھونی چرچ میں شادی کی رسومات. اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اقلیت کے نائب صدر جناب ڈیوڈ ساندھو کے صاحبزادے ڈینیل میسی کی شادی کی تقریب شادی کی رسومات چرچ سینٹ اینتھونی میں ادا کی گئی. فادر عرفان فیاض نے شادی کی رسومات کو سر انجام دیا. شادی میں سماجی و سیاسی شخصیت نے شرکت کی. تمام اہل برادری سمیت تمام رشتہ داروں نے شرکت کی. ڈیوڈ سندھو کا کہنا تھا، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں آج بہت خوش ہوں اور میری بہت ساری دعائیں میرے بچوں کے لیے ہیں کہ یسوع مسیح میرے بچوں کا نگہبان. گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ 20 روز بعد بھی جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے. پلاسٹک سرجری کا عمل مکمل کر لیا گیا. بچی کے زخموں کی اینٹی بایوٹک ڈریسنگ کا پروسیس کیا جا رہا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حمزہ واسی سے جو اس وقت جنرل ہسپتال میں موجود ہے. جی حمزہ، بتائیے گا کیسی حالت ہے رضوانہ کی اب؟ جی بالکل، گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ آج 20ویں روز بھی لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ میڈیکل سرجنز کی جانب سے رضوانہ کے زخموں کا آپریٹ بھی کیا گیا تھا اور رضوانہ کے زخموں کی صفائی بھی کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج رضوانہ کے زخموں کی اینٹی بایوٹک ڈریسنگ کی جا رہی ہے اور یہ عمل جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہے گا. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو رضوانہ کے کندھے اور بازو کا فریکچر تھا اس کو فی الحال پلاسٹر لگا دیا گیا ہے. کندھے اور بازو کا آپریٹ ابھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رضوانہ کے جو زخموں میں انفیکشن تھا وہ کافی حد تک زیادہ تھا. ان کو اینٹی بایوٹک میڈیسن دے کر ان کے انفیکشن پر قابو پا لیا گیا ہے. جب تک رضوانہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی، وہ کھانا پینا مکمل طور پر شروع نہیں کر دیتی، اس وقت تک ان کے کندھے اور بازو کا آپریٹ نہیں کیا جائے گا. ڈاکٹر کی جانب سے یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو رضوانہ ہے وہ خطرے سے تو باہر ہیں، ان کی صحت میں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے، لیکن ابھی مزید کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں ان کی صحت کو سٹیبل ہونے میں، ان کے مکمل طور پر کھانا پینا شروع کرنے میں. لیکن جو رضوانہ کی صحت ہے اس وقت وہ خطرے سے باہر ہے. جی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا غم. 24 محرم الحرام کا شبیہ تابوت کا جلوس برآمد. عزاداروں کی سینہ کو بھی ادارہ منہاج الحسین میں مجلس کا انعقاد کیا گیا. اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر. 24 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور میں مجلس عزا منعقد کی گئی. بانی مجلس اور شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر حسین محمد اکبر کا کہنا تھا، آج جس امام کی شہادت ہے، جس کی آنکھوں نے کربلا میں ایک شیر خور کے گلے پہ تیر، ایک جوان کے سینے سے برچی، ایک شیر جوان کے بازو تلوار، ایک سوکھا گلا کند خنجر سے ذبح، شام و کوفہ میں ماؤں بہنوں کو کھلے سر اور باپ کو 40 سالہ خون روتے دیکھا. حضرت امام سجاد علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار ہو کر 20 مرتبہ حج کے لیے گئے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی
इसे चाबुक नहीं मारा। इनका कहना था करबला के मैदान में जितना बड़ा इम्तिहान था इतना ही बड़ा खानदान मुंतखब हुआ। अली के बच्चों के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी कि दीन पर बच्चे कुर्बान करते। ये सिर्फ इस घराने की शान थी जिन्होंने अपने नाना का दीन बचाया, जिन्होंने अजान व नमाज बचा ली और अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। जिस बेटी को हुसैन ने रातों को सजदों में रो रो के मांगा था, नाना की उम्मत ने इस 4 साल की ज़ईफा को हर मोड़ पर तमाचे मारे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म में जितना खून रह गया था वो शाम के बाजारों में हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंखों ने बहा दिया। दुनिया की चमक दमक हमें वक्त के इमाम की शनाख्त में दुश्वारियां पैदा ना कर दे। नक्शा में कूफा व शाम किसी शहर का नाम हो सकता है, लेकिन तारीख करबला में कूफा व शाम करदार का नाम था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब तुम जान लो कि तुम हक पर हो तो जान की परवाह और माल की परवाह ना करो। और इख्तिताम मजलिस में शबिया जुलजना का जुलूस बरामद हुआ जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सुबह वापस इमाम बारगाह अदारा मनहाजुल हुसैन आकर इख्तिताम पजीर होगा और जुलूस के साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की, तो कल से 16 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से 16 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसाखेल, बारखान, योब, कलात और खुसदार में बारिश बरसने का भी इम्कान है। दूसरी जानब कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 81% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जज़वी अबरालूद रहने और बूंदाबांदी का इजहार किया गया है। खबर शामिल करें खेल के मैदान से, तो कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा ने कहा कि एशियन गेम्स में भारतीय टीम से शिकस्त का बदला लेंगे। टूर्नामेंट से एशियन गेम्स की तैयारी का बहुत अच्छा मौका मिला है। एशियन गेम्स में ज्यादा अच्छे नताइज देने में कामयाब होंगे। उनका कहना था कि सेमीफाइनल से बाहर होने का पूरी टीम को बहुत दुख है। हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना चाहिए था। हर लड़के ने 100% कारकर्दगी दिखाई। ज्यादातर लड़के तो पहली बार सीनियर टीम की तरफ से खेल रहे थे। जितने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने को मिलेंगे उतना ही परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर होगा। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान मारिया खान ने सऊदी फुटबॉल क्लब ईस्टर्न फिल्मीज से मुआहदा कर लिया। कौमी फुटबॉलर सऊदी अरब में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होंगी। सऊदी वुमेन प्रीमियर लीग क्लब ईस्टर्न फिल्म्स ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि इस सीजन के लिए पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान और मिडफील्डर मारिया खान को शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम का बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा है। वतन अजीज का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। स्ट्रीट चिल्ड्रन अंडर 17 फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। नॉर्वे कप दुनिया का सबसे बड़ा यूथ टूर्नामेंट मुनक्किद कराता है। टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके 7 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल की। मुस्लिम हेल्डर्स फाउंडेशन के मुताबिक टीम की उम्दा कारकर्दगी वहां पाकिस्तानी नौजवानों के लिए हौसले का बायस बनी है। आपको इस हवाले से बताते चले कि एजाज पाकिस्तान की निहायत काबिल फख्र बात है इस हवाले से कि पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम का बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा है। वतन अजीज का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया गया। स्ट्रीट चिल्ड्रन अंडर 17 फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। नॉर्वे कप दुनिया का सबसे बड़ा यूथ टूर्नामेंट मुनक्किद कर रहा है। टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके 7 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल की है। मुस्लिम हेल्डर्स फाउंडेशन के मुताबिक टीम की उम्दा कारकर्दगी वहां पाकिस्तानी नौजवानों के लिए हौसले का बायस बनी है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा और मॉडल रेशम का बोल्ड बारबी लुक सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनकीद की जद में आ गया। टेलीविजन और सिनेमा घरों में अपनी जानदार अदाकारी से नाज़रीन का दिल जीतने वाली रेशम का ट्रेंड फॉलो करना मदाहों को कुछ खास न भाया और तनकीद का निशाना बना डाला। तकरीबन 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली रेशम की सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें उन्हें पाकिस्तानी मारूफ
برانڈ کے گلابی رنگ کے بولڈ لباس سے تن کیے سالگرہ کی تقریب میں شرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایس ایس پی سعید شاہ کا چمبر شہر میں چمبر ہائر سیکنڈری اسکول، دی اسپرٹ اسکول اور یونین پارک سنگھار ہائی اسکول کا دورہ ہے۔ سیکیورٹی میں دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے زاہد نیاز قائم خانی سے۔ جی زاہد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایس ایس پی ٹنڈو والا یار سید سلیم شاہ نے چمبر شہر میں واقع چمبر ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا۔ ایس ایس پی ٹنڈو والا یار نے دی اسپرٹ اسکول چیمبر کے کلاس روم کا وزٹ کیا اور بچوں سے تعلیم کے متعلق بات چیت کی۔ ایس پی ٹنڈو یار نے یونین پارک سنگھار کے 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچوں سے ان کے کلاس روم میں جا کر کیئرس اور کونسلنگ کے بارے میں بتایا اور استاذہ کرام کو کہا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ ایس پی ٹنڈو والا یار نے چمبر ہائی سیکنڈری اسکول میں سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں اور استاذہ کرام کو کہا کہ اسکول میں اسمبلی میں بچوں کو منشیات کے اثرات کے بارے میں آگاہ کریں اور کلاس روم میں بچوں کو چیک کریں۔ ایس پی ٹنڈولیا نے شرکاؤں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ طالب علم معاشرے کا سب سے اہم جز ہے۔ میری ہر طرح سے کوشش ہے اپنی نوجوان نسل کو۔ خبر شامل کریں پتوکی سے، جہاں ڈپٹی ایجوکیشن آفس میں 14 اگست یوم آزادی کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا۔ تحصیل بھر کے ایلیمنٹری اور پرائمری اسکولز کی طالبات کے درمیان تقریری آرٹ اور ملی نغموں کے مقابلے پیش کیے گئے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے آصف سعید۔ کی گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول فیصل کالونی میں جشن آزادی کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی پروگرام میں تحصیل بھر کے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز کی طالبات کے درمیان مقابلہ حسن تقریر، اردو و انگلش، ڈرائنگ اور ملی نغموں کے مقابلہ جات ہوئے، جس میں اسکولز کی طالبات نے جشن آزادی کے موضوع پر تقاریر اور ملی نغمے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ خصوصی تقریب کی صدارت ڈپٹی ایجوکیشن میڈم ثریا فاروق نے کی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر پتوکی رانا امجد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی رانا امجد نے طالبات سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں، بچیوں، اللہ نے ہمیں یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ دیا، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی تعلیمات اللہ کے بتائے حکم کے مطابق چلیں۔ اپنے خطاب کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی رانا امجد نے جشن آزادی کے حوالے سے بہترین پروگرام ارینج کرنے پر پرنسپل گورنمنٹ پرائمری اسکول فیصل کالونی میڈم صوفیہ کلثوم اور محکمہ ایجوکیشن تحصیل پتوکی کی تمام ایوز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں آصف سعید، کوہ نور نیوز۔ یوم آزادی منانے کے صرف 2 دن باقی ہیں۔ بھاولپور کے شہری پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کے ساتھ جھنڈے، ٹی شرٹ، بیجز خریدنے کے لیے مختلف سٹورز پر خریداری میں مصروف عمل ہیں تاکہ جشن آزادی دھوم دھام سے منائے۔ اسی پر خصوصی رپورٹ کریں گے فضل جاوید خان۔ چھتریاں 14 اگست جشن آزادی منانے کے لیے بھاولپور کے شہری پرجوش۔ جشن آزادی میں 2 دن باقی۔ بھاولپور کے شہریوں نے کہا ہم بچوں کے ساتھ جھنڈے، ٹی شرٹ، بیجز خریدنے کے لیے مختلف اسٹال پر خریداری میں مصروف ہیں تاکہ جشن آزادی دھوم دھام سے منائیں۔ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، پاکستان پاکستان پاکستان۔ جی میرا یہ میسج اس ملک کے پاکستان کے ہر ایک عزیز شہری کے لیے ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزادی کا جشن ہم دھوم دھام سے منائیں گے۔ بھلے کہ ہم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس دن 14 اگست کو منانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں جھنڈیاں، پاکستانی قومی پرچم اور بیجز خریدنے آیا ہوں تاکہ ہماری نسلوں کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے کتنی جانوں کی قربانیاں دی گئیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہمارے بڑوں نے یہ بڑی قربانیاں دے کے اس کو آزاد کروایا تھا، اور ہمیں سب لوگوں کو چاہیے، ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ بڑے جوش و خروش سے یہ جشن آزادی کو منائیں۔ ابھی میں یہ جھنڈا اور بیج وغیرہ خریدنے کے لیے آیا ہوں، اور میری طرف سے تمام پاکستانی کو جشن آزادی مبارک ہو۔
لیکن جشن آزادی منانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی قدر کرنا، اس ملک کی پلیز قدر کریں. اور خاص طور پہ میرا جو پیغام ہے وہ ینگ جنریشن کے لیے ہے. 14 اگست پہ بائک پہ ون ویلنگ کرتے ہیں، لفٹنگ کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، تو بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو کھو بیٹھتی ہیں. تو ون ویلنگ کرتے ہیں، ان کی بعض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. تو میری تمام ینگ جنریشن سے گزارش ہے کہ پلیز یہ کام نہ کریں.